Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusa Iram. In today's lecture, we will cover the physics grade 9th and the topic is the constructed response questions. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 के ऑल कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बुक एक्सरसाइज में गिवन है. So, in order to know all the answers of these questions, you will have to stay connected with me till the last of the video. Now, students, let's get started. We have the constructed response question number 1, which is distance and displacement may or may not be equal in magnitude. Explain this statement. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले लेट अस रिकॉल व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. स्टूडेंट्स बेसिकली डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान the length of the path between the 2 points is known as the distance, whereas what is the displacement is always the shortest distance between the 2 points. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और कभी नहीं होते. ऐसा किन केसेस में होता है हमने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट वी हैव द टू केसेस. द फर्स्ट वन इज व्हेन बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. कब होंगे इक्वल? अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है, वो कोई सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट नहीं कर रहा बल्कि सीधा चलता जा रहा है. इट्स मीन यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होंगी. बट इन द सेकंड केस व्हेन बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल, कब ऐसा होगा? जब ऑब्जेक्ट जो है जब स्ट्रेट लाइन में मूव करते करते अपनी डायरेक्शन को चेंज करना स्टार्ट कर देगा तो वहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों जो हैं डिफरेंट हो जाएंगे. नाउ लेट्स रीड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ व्हेन दे आर इक्वल. If an object moves in a straight line without changing the direction, distance and displacement are same. When they are not equal, if an object changes the direction round trip, displacement is less than the distance travel. Now we have the question number 2, which is when a bullet is fired, its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. The muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than that of the other gun with the shorter barrel. In which gun is the acceleration of the bullet larger? Explain your answer. तो स्टूडेंट्स हमने बताना है कि किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी. ऑब्वियसली यहाँ पे स्टूडेंट्स वो गन जिसकी का मज़ल शॉर्टर है उसकी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी. वो कैसे होगी, किस फार्मूला के थ्रू होगी? नाउ लेट अस सी दैट एक्सेलरेशन इज़ लार्जर इन द गन विद द शॉर्टर बैरल अकॉर्डिंग to the formula A is equal to V minus U over 2. Since the bullet reaches a higher velocity in shorter time, the acceleration must be greater. Now students, let us read out the question number 3, which is 2.3. For a round trip, average velocity was calculated. Its value come out to be positive. Is it possible that its instantaneous velocity at any time during the trip had negative value? Give the answer, give the justification of your answer. So students, yes, it is possible. Average velocity is the total displacement divided by the total time taken. If the object changes the direction along a trip, it may have a negative instantaneous velocity at some points even if the overall displacement is the positive. Now we have the 2.4 question, which is a ball is thrown vertically upward with the velocity v. It returns to the ground in time t. Which of the following graph correctly represent the motion? Explain your answer. तो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2.4 में आपकी बुक के ऊपर 4 ग्राफ्स मेंशन हैं और अगर आप इस केस को स्टडी करें कि एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है तो स्टूडेंट्स
जब नीचे से ऊपर बॉल जाएगी तो एट अ पर्टिकुलर हाइट उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप बुक के ऊपर देखें 4 ग्राफ्स हैं, तो इनमें से जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो इस केस को एग्जैक्टली मैच करता है। अगर आप देखें तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे टाइम है विच इज़ इंडिपेंडेंट वेलोसिटी, और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है विच इज़ डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया है, तो सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी थोड़े टाइम के लिए ज़ीरो हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी थी, इट्स मीन हायर पीक से स्टार्ट हो रही है। जब ये पॉइंट टी को टच कर रही है तो इट्स मीन एट पर्टिकुलर हाइट इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, और उसके बाद फिर जो है वो बॉल नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो अगेन देयर इज़ इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी। So we have the graph A which is correct. Now let's read out its explanation. Graph A is correct. The ball's velocity decreases linearly to zero at highest point, then increase linearly in the opposite direction until it reaches the ground. The area under the graph represent the displacement which is zero when the ball reaches to the ground. तो स्टूडेंट्स देखें टाइम के साथ साथ जो है वो बॉल को जब फेंका गया है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर जाके ज़ीरो हो जाएगी, इट्स मीन कि वो ज़ीरो को आके टच करेगी और उसके बाद फिर इंक्रीमेंट होगा, तो फिर ग्राफ नंबर ए जो है इट विल बिकम एज करेक्ट. Now we have the 2.5, which is the figure given below shows the distance time graph for the travel of cyclist. Find the velocities for the segment A, B and C. तो स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर एक्स एक्सिस पे जो है वो ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट किया गया, जबकि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को किया गया है, डिफरेंट वैल्यूज़ मेंशन है। और यहाँ पे देखें अगर स्टूडेंट्स 3 सेगमेंट बने हुए हैं ए, बी एंड सी, हमने सेपरेटली डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर अलग अलग वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द velocity, firstly we should know the formula of velocity which is del d over del t. तो स्टूडेंट्स देखें अगर आप फॉर द सेगमेंट ए, तो del d की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी, अगर आप देखें स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स के दरमियान डेल डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट 2.0, और क्योंकि ये ज़ीरो पे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो D1 होगा इट विल बी ज़ीरो, तो 2 माइनस ज़ीरो क्या आएगा 2 किलोमीटर। इसके बाद डेल टी, अगर आप देखें स्टूडेंट्स ए सेगमेंट पे हाईएस्ट टाइम इंटरवल 6 है, इसको ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल हैव द 6 मिनट। फिर आप स्टूडेंट्स इजीली फार्मूला को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी, डेल डी इज़ 2 किलोमीटर, डेल टी इज़ 6 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आप जब डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.333 किलोमीटर पर मिनट। बट स्टूडेंट्स आपने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू द स्टैंडर्ड नोटेशन, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, जबकि मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 पर डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 5.55 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने सेगमेंट बी जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। सेगमेंट बी की कैलकुलेशन, स्टूडेंट सेगमेंट बी की कैलकुलेशन के लिए अगर आप अगेन ग्राफ के ऊपर देखेंगे तो सेगमेंट बी आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है 6 और 10 के दरमियान में टाइम इंटरवल है, जबकि डी जो है वो 2 कांस्टेंट ही है। इट्स मीन डेल डी जो है वो होगा 2 माइनस 2, जबकि डेल टी होगा 10 माइनस 6। तो देखें स्टूडेंट्स बी वाला सेगमेंट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, 2 माइनस 2 किलोमीटर विल बिकम ज़ीरो, डेल टी 10 माइनस 6 जो है 4 आ जाएगा, देन यू विल हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला विच इज़ वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी, 0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 मिनट। तो स्टूडेंट्स 0 किलोमीटर पर
मिनट आएगा, इसको जब आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर स्टूडेंट्स 0 मीटर पर सेकंड आएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास सेगमेंट सी है। सेगमेंट सी के लिए आप देखें स्टूडेंट्स ध्यान से ज़रा, स्टूडेंट्स फॉर द सेगमेंट सी अगर आप देखें तो यहाँ पे डेल डी जो है डेट इज़ 0 - 2 और जो डेल टी है इट विल बी 20 - 10, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सेगमेंट में डिक्रीमेंट आ रहा है। तो हम स्टूडेंट्स वेलोसिटी की वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे वी हैव डेल डी ओवर डेल टी -2 किलोमीटर ओवर 10 मिनट्स, then we will get -0.2 किलोमीटर पर मिनट। और लास्ट में स्टूडेंट्स जैसा कि आपने सेगमेंट ए और बी के लिए किलोमीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था, तो इसके लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 60 पे जब आप डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट -3.33 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स वी हैव द लास्ट क्वेश्चन विच इज़ द 2.6। इज़ इट पॉसिबल दैट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम बट एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो? इफ़ येस गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केस। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा येस इट इज़ पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल एट अ हाइएस्ट पॉइंट of a vertically thrown ball, its velocity becomes zero for instant, but its acceleration due to gravity remains constant and non-zero, which is 9.8 meter per second square or 10 meter per second square। जब स्टूडेंट्स आप एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 2.4 में, ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके वेलोसिटी ऑफ द बॉल ज़ीरो हो जाती है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन कांस्टेंट विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है ऑल कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को in complete detail। Students, if you like my video then do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and thank you so much for listening me.